Today, we are starting a new chapter, that is states of matter. States of matter. Now, in states of matter, first question is, what are intermolecular forces? Intermolecular forces. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से क्या मतलब है? देखो बेटा, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, सपोज आई एम टेकिंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. If I take hydrogen molecule is formed of two hydrogen atoms, that is H single bond H. Covalent bond is present between them, so it becomes H2 molecule. There is another H2 molecule having covalent bond, chemical bond in hydrogen is covalent bond, and there are a large number of hydrogen molecules. Now, is there any force? कोई force इनके बीच में अगर है? Yes, there is force present between these molecules, and this force which is present between these molecules, which is keeping molecules together when they are brought together, this force is known as intermolecular force. I am taking another example. Let us take water. Water is H2O, formed of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen having covalent bonds. There's another molecule of water. There are large number of molecules of water, and there's a force of attraction between these water molecules. And that force, many deliberately dot line because hydrogen bonding is there. This force is also known as intermolecular force, right? This is again similar to this intermolecular force. So what are intermolecular forces? This is a force of interaction, force of attraction. It may be repulsion sometimes as well. So normally it is force of attraction present between different molecules, right? These are also known as van der Waals forces. So next very important point, पहला हो गया. What are intermolecular forces? They are the force of attraction present between different molecules. So अगर question आएगा, what is the type of chemical bond in hydrogen? It is covalent bond. But what is the intermolecular force? तो वो कौन सा intermolecular force है उसको हमने भी आज पढ़ना है. So intermolecular force are also known as van der Waals forces. याद रहे, van der Waals forces. दूसरा point है ये. Intermolecular forces are also known as van der Waals forces. पहला point मैंने कहा, they are the force of attraction present between different molecules. Second point बताया मैंने, they are also known as van der Waals forces. But same forces are, the nature of these forces बिल्कुल similar to the forces present in noble gas atoms, because noble gas तो molecule होते नहीं है. Suppose neon atom, ये neon atoms है. इन neon atom के बीच में भी कोई force होगा. Since nature of this force is similar to the nature of intermolecular force present in hydrogen, water, etc. So noble gas atoms में जो force होता है आपस में एक एटम और दूसरे एटम के बीच में भी, क्योंकि कोई कोवलेंट बॉन्ड नोबल गैस में होता नहीं है. दे आर नॉट फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड्स. सो दीज आर आल्सो नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. सो नोबल गैस एटम्स इन एक्सेप्शन होना चाहिए था इंटर एटॉमिक फोर्सेस, बट ये भी इंटरमोलिकुलर फोर्स इनको भी कहा जाता है. सो तीन पार्ट्स मैंने बता दिए. फर्स्ट, force of attraction present between different molecules are known as intermolecular forces. Second point, also known as van der Waals forces. Or third,
These forces are also present between noble gas atoms. All right. Now the next one. Types of intermolecular forces. Right. Now, what are different types of intermolecular force? What are different types of intermolecular force? जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है इनके क्या टाइप्स है? देखो, we are having three types of covalent molecules because these forces are normally present between covalent molecules only. Covalent molecules are of three types. One is, suppose, HCl molecule, water molecule. These are polar molecules. HCl molecule, water molecule. These are polar. Polarity hai ammonia molecules because bond is present between different atoms. Cl is more electronegative. Therefore, Cl में थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, हाइड्रोजन पर slightly positive charge. So it's a polar covalent bond. Similar in water, hydrogen is slightly positively charged, oxygen is slightly negatively charged. 2 negative क्योंकि 2 H है. Similarly, this is 3 negative, hydrogen is positive, 3 hydrogen है. So these are all polar molecules, remember. So polar molecules, कौन से molecules है ये polar. दूसरे type of molecules हमारे पास है जैसे H2, the pure non-polar. इसमें कोई polarity का question ही नहीं है because similar atoms, homoatomic molecule, O2, homoatomic molecule, N2, again homoatomic molecule, F2, homoatomic molecule. मतलब ऐसे molecule जो similar atoms के बीच में हैं, इनको हम non-polar molecules बोलते हैं. We are having two types of molecules only, one polar and this was second, that is non-polar. Right? अब इन्हीं के बीच में हमने देखना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. पोलर के बीच में, नॉन पोलर के बीच में. अब तीन टाइप्स हो सकते हैं. देखो, पोलर और पोलर के बीच में आपस में, पोलर और नॉन पोलर के बीच में दूसरा टाइप, और नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में. सो अगर मैं इफ आई टेक HCl, ये एक पोलर और पोलर के बीच में, लाइक दिस, बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल एंड पोलर मॉलिक्यूल, ये एक टाइप हो सकता है. ठीक है. दूसरा टाइप पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में, पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में, नॉन पोलर. तीसरा नॉन पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में, नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में. सो intermolecular force of attraction are normally of three types, right? तो तीन टाइप्स है. तो पहला टाइप हम देखेंगे, that is known as first type of intermolecular forces, dipole-dipole interaction. Dipole-dipole interaction. Dipole-dipole interaction, right? Dipole-dipole interaction क्या है? देखो, डाइपोल का मतलब जिसमें पोलर होगा. पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है, दैट्स नोन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. सपोज मैं ये पोलर मॉलिक्यूल ले रहा हूं, ये स्लाइटली पॉजिटिव एंड है, ये स्लाइटली नेगेटिव एंड है, राइट? दूसरा पोलर मॉलिक्यूल ले रहा हूं, स्लाइटली पॉजिटिव एंड है, स्लाइटली नेगेटिव एंड है. तो इस वाले पॉजिटिव एंड को इस नेगेटिव एंड के साथ इंटरेक्शन होगी, and this interaction is known as dipole-dipole interaction because present between two dipolar molecules, present between oppositely charged ends of two dipolar molecules. These are oppositely charged ends of two dipolar molecules, right? Positive end of one molecule and negative end of adjacent molecule. अब जब ये इंटरेक्शन होगी, तो अगर मैं इसमें, क्योंकि whenever there is, आपने पढ़ा भी हो already, whenever there is attraction there is energy is released, and that energy, which is interaction energy is, if I take interaction energy, is inversely proportional to, याद रहे, distance between these two का cube at rest. मतलब ये, अगर molecules rest में हैं, molecules stationary है, तो जितने ज्यादा नजदीक होंगे वो
अगर डिस्टेंस कम है तो इंटरेक्शन ज्यादा होगी, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इंटरेक्शन एनर्जी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू we can say cube of distance between the molecules at rest. And also this very important point, in interaction energy if they are in motion में तो बहुत कम ओवर हो जाएगी, it is proportional to inversely proportional to sixth power of r is distance, this at motion, मतलब अगर distance बढ़ेगी तो वो power of 6 into इतना inverse proportional हो जाएगा, so interaction energy will be very very less. So this is the second point. Third point is very important. These forces were also studied. These were studied by scientists known as Kizum. Therefore, they are also known as Kizum forces. This is the third point. Kizum forces. भी उनको बोलते हैं because Kizum are the scientists who discovered, who studied these forces, right? अगर मैं example ले लूं, example HCl, H और Cl. देखो H plus Cl negative. There's another molecule HCl. H plus Cl negative, right? इस नेगेटिव वाले को इस पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन है, एंड दिस अट्रैक्शन इज नोन एज डाइपोल इंटरेक्शन, राइट? दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, डाइपोल इंटरेक्शन, राइट? फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स हम कर रहे हैं. नाउ द सेकंड टाइप. Second type is dipole-induced dipole interaction. Dipole-induced dipole interaction. Dipole-induced dipole interaction. मतलब एक साइड में पोलर और एक साइड में नॉन पोलर. पोलर और नॉन पोलर के बीच में इंटरेक्शन जो है, that is known as dipole-induced dipole interaction. राइट? अब पोलर नॉन पोलर, सपोज पोलर नॉन पोलर में कह रहा हूं एक HCl है जो पोलर है, the polar molecule slightly negative and slightly positive, right? दूसरा लेता हूं हाइड्रोजन, H single bond H, it is completely non polar. तो इनके बीच में इंटरेक्शन कैसे आएगी? सिंपल सी बात है, जब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल के नजदीक आ जाता है तो इसमें जो एटम, ये वाला एटम है, यहाँ का एटम है, इसमें चेंज हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल हो जाते हैं. सपोज मान लीजिए मैं यहाँ से कह रहा हूँ ऐसे, ये चार्ज पार्ट है, ये लाइक दिस, ये दो एटम्स का मॉलिक्यूल है, ये स्लाइटली नेगेटिव है, ये स्लाइटली पॉजिटिव है. इसके साथ अब एक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ रहा है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ गया. अब ध्यान से सुनो बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वाला एंड इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ आए, तो ये एंड स्लाइटली पॉजिटिव बनेगा, ये एंड स्लाइटली नेगेटिव बन सकता है, फिर इसको ये इंटरैक्ट कर सकता है. इसको कहते हैं हम इंड्यूस किया. मतलब जब इसके नजदीक आएगा कोई मॉलिक्यूल तो उसमें भी इंड्यूस होगा. इंड्यूस कैसे होगा? रिपल्शन से. सपोज पॉजिटिव वाले एंड के नजदीक अगर कोई एटम आएगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये एंड फिर बनेगा उसका नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव. हाँ, होगा उस पहले वाले से थोड़ा वीकर, लेकिन इंटरैक्ट फिर इसके साथ इंटरैक्ट भी करेगा. सो इंड्यूस करता है. ये जो है पोलर वाला था, ये नॉन पोलर था, पहले नॉन पोलर था, अब स्लाइटली डाइपोल, इसमें स्लाइट डाइपोल इस वाले एटम में भी क्रिएट हो जाता है, इस वाले एटम में क्रिएट होता है और फिर इसके साथ इंटरैक्ट करेगा. सो दिस इज प्रेजेंट बिटवीन अ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल. Polar molecule induce a dipole in the adjacent non-polar molecule and then interacts with the same molecule. ठीक है, सेम इंटरेक्शन एनर्जी, वही चीज, इंटरेक्शन एनर्जी में कोई फर्क नहीं. 1/r³ in at rest and 1/r proportion 1/r6 at motion, in motion. उसमें कोई फर्क नहीं, वो तो सेम लिख सकते हैं. ठीक है, जैसे HCl एंड कार्बन डाइऑक्साइड, HCl एंड ऑक्सीजन, इनमें होता है, ये इंड्यूस करता है. सो अगर कोई पोलर के साथ नॉन पोलर हो जाए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ जाए, तो उसमें स्लाइट पोलैरिटी आ जाती है रिपल्शन की वजह से या अट्रैक्शन की वजह से, एंड फिर ये इसी के साथ अट्रैक्ट करता है.
दिस इज नोन एज पोलर नॉन पोलर के बीच में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. नाउ थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्पर्शन फोर्स. इसको डिस्पर्शन फोर्स बोलते हैं शॉर्टकट में, या इसका दूसरा नाम है, याद रहे इसका दूसरा नाम है इंस्टेंटेनियस डाइपोल dash induced instantaneous dipole interaction. Right, so it is dispersion force. So what is dispersion force? It's also instantaneous dipole induced instant. देखो बेटा ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पहला पॉइंट यही है कि this type of interaction is present in non-polar molecules. Right? अब ये non-polar molecules में कैसे ये होता है, पूरा ध्यान से सुनो. मैं मॉलिक्यूल के बदले नोबल गैस एटम में भी होगा, वो भी नॉन पोलर है. मैं नोबल गैस एटम की एग्जांपल देता हूँ. देखो ध्यान से बेटा, नोबल गैस एटम होता है ये नोबल गैस एटम. मान लीजिए लेट अस टेक एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूं, मैं ये नोबल गैस एटम ले रहा हूं. सिंपल, ये नोबल गैस एटम है, इसमें न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन्स है. सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं. यूनिफॉर्म है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, मान लीजिए आई एम ऑब्जर्विंग दिस एटम फॉर 60 सेकंड्स, 1 मिनट के लिए. 1 मिनट में मैं देख रहा हूं यूनिफॉर्म में रहता है, लेकिन कभी 1 मिनट में 1 सेकंड ऐसा आता है जब इस एटम में इलेक्ट्रॉन्स एक साइड सारे जाते हैं और न्यूक्लियस एक साइड जाता है. घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल, बट ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए है. मैंने कहा स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम में कभी कभी क्या होता है, किसी एटम में इंस्टेंट ऑफ टाइम में एटम में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म जब हो जाए, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब हो जाए, जिस साइड में इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे वो साइड नेगेटिव बनता है, वो साइड दूसरा साइड पॉजिटिव बनता है. लेकिन मैंने अभी कहा ये स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम में होता है, वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये कंटिन्यूअसली नहीं. इफ वी कंसिडर 60 सेकंड्स, मान लीजिए 60 सेकंड में 1 सेकंड में ये हो सकता है. Very small instant time, distribution of electrons becomes non-uniform. This results in the formation of instantaneous dipole. मतलब small instantaneous dipole produce होता है. और याद रहे यही instantaneous dipole मैं फिर यहाँ दूसरे स्टेप में लेता हूँ. मान लीजिए जिस 1 सेकंड में ये instantaneous dipole बना, एक साइड में नेगेटिव इसका बना, एक साइड में पॉजिटिव, उसी टाइम उसी सेकंड के लिए जो इसके नजदीक कोई और एटम होगा उसमें भी ये रिपल करेगा, क्योंकि नेगेटिव है उसमें ये उस टाइम रिपल करेगा इलेक्ट्रॉन, और ये नेगेटिव एंड बनेगा और यहाँ से पॉजिटिव एंड बनेगा. राइट, और बीच में जो इसके बीच में इंटरेक्शन है इसी के साथ ये इंटरेक्ट करेगा. मैं फिर कह रहा हूं, इट इज बिलीव्ड दैट फॉर अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम नॉन यूनिफॉर्म. किसी भी एटम में, किसी भी नॉन पोलर में ये पॉसिबल है, और उसी टाइम एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट होता है. एंड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इज क्रिएटेड. राइट, दिस इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल. तो दिस इंस्टेंटेनियस डाइपोल इमीडिएटली क्या करेगा, दूसरे एटम में इंड्यूस करेगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और इसी के साथ इंटरेक्ट करेगा. और इसीलिए इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन. याद रहे इस वाले फोर्स को, ये सबसे वीकेस्ट है, सबसे वीकेस्ट यही है, द वीकेस्ट ऑफ ऑल. सो इसको डिस्पर्शन फोर्स भी कहते हैं. इसका एक और नाम भी है, फ्रिट्ज लंडन था साइंस का नाम जिसने इसको स्टडी किया था, फ्रिट्ज लंडन, इसलिए इसको लंडन फोर्स भी बोलते हैं, लंडन फोर्स. देखो पहले वाले को मैंने कहा कीजोम फोर्स, दूसरे को बताया नहीं था मैंने, मगर उसको डिबाई फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि डिबाई ने स्टडी किया था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल वाले को, डिबाई फोर्सेस. एंड डिस्पर्शन फोर्स का एक और नाम है लंडन फोर्स. और इंस्टेंटेनियस डाइपोल
इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन सबसे वीकेस्ट होता है, राइट? और ये फोर्स जितने एटम्स मॉलिक्यूल में ज्यादा है उतने चांसेस ज्यादा होते हैं। सपोज मैं एक एटम लेता हूं, लेट अस टेक एन एटम लाइक दिस, एक मॉलिक्यूल 2 एटम वाला, तो दूसरा मॉलिक्यूल 2 एटम, तो इसको कभी इन दो के बीच में होगा, ये कभी 1 सेकंड के लिए, कभी इधर भी होगा। लेकिन अगर 3 एटम वाला मॉलिक्यूल है, 4 एटम वाला मॉलिक्यूल है, 4 एटम वाले मॉलिक्यूल में ज्यादा पॉसिबल, कभी इधर, कभी 1 सेकंड के लिए इधर, कभी इधर एक। सो इसका मतलब है जो डिस्पर्शन फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास है। मतलब मोर द मॉलिक्यूलर मास, मोर द सरफेस एरिया, मोर इज द डिस्पर्शन फोर्स। अगर मैं आज कहूं बता दो, सपोज इथेन, और इथेन होता है 2 कार्बन वाला, और हेक्सेन 6 कार्बन वाला, इनमें ज्यादा किसका होगा dispersion force? That is hexane, because it has 6 carbon atoms, right? It always increases with the increase in molecular mass. It always increases with the increase in surface area of molecules. अगर branching होगी chain में तो ये कम होगा, जितना surface area बढ़ेगा उतना ये बढ़ जाएगा। This was about what is dispersion force or Lennon force, right? These are intermolecular forces. There is one force also that's known as, ये अलग से पढ़ाऊंगा, what is ion dipole interaction। देखो बेटा, जब हम पानी में आयन डायपोल इंटरेक्शन जो है, जब हम पानी में कोई साल्ट डालते हैं, व्हेन वी ऐड एनी साल्ट, जैसे NaCl डाला पानी में, NaCl डालेंगे इन वाटर में, तो NaCl क्या करेगा काम, NaCl इन वाटर Na+ बन जाएगा और Cl बनाएगा Cl-, और इसके अराउंड जो है पानी के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि देखो ऑक्सीजन होता है पानी का नेगेटिवली चार्ज, वो इंटरैक्ट करेगा इसके साथ, O इज नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव के साथ इंटरैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और दिस अट्रैक्शन इज नोन एज आयन डायपोल इंटरेक्शन, बिकॉज बीच में आयन है, ये इंटरेक्शन है, और जो ऑक्सीजन है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, Δ2 नेगेटिव, Δ2 नेगेटिव, Δ2 नेगेटिव, इसके साथ अट्रैक्शन होगी, तो डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, राइट? और Cl के अराउंड क्या होंगे, HH, राइट, लाइक दिस, HH लाइक दिस, HH लाइक दिस, ठीक है, HR पॉजिटिवली चार्ज, ये भी इंटरैक्ट करेंगे इसके साथ। दिस इज आयन, आयन एक बीच में आयन है और इसके अराउंड वाटर डाइपोलर है, ion dipole interaction. So whenever we dissolve salt in water, there's ion dipole interaction, right? तो अगर मैं आज आपको एक एग्जांपल आप दे दूं इसके बेस पर, टाइप ऑफ इंटरेक्शन आपको बताना है। देखो बेटा, मैं कहूं बता दो हाइड्रोजन में अब कौन सा टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स है, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड में बता दीजिए कौन सा है, थर्ड HCl में बता दीजिए कौन सा, नाउ फोर्थ बताइए सब HCl एंड हाइड्रोजन में कौन सा हो सकता है, फिफ्थ KCl एंड वाटर में क्या होगा, शाबाश, एंड एक और बताता हूं, सपोज लिथियम प्लस एंड वाटर में क्या होगा। टाइप नाम बता दीजिए जरा, बताइए एक एक करके मुझे नाम, शाबाश। हाइड्रोजन सिंपल नॉन पोलर, मैंने से हाइड्रोजन इट मींस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन नहीं लिखा होगा वहां पर, ओनली हाइड्रोजन लिखा होगा, एंड देयर इज डिस्पर्शन फोर्स जो लास्ट में पढ़ा हमने। सो इन हाइड्रोजन कौन सा फोर्स है, डिस्पर्शन फोर्स, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट का बना है, लेकिन अगर आप डाइपोल देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में आपको आपने मैंने बताया कि नॉन पोलर माना जाएगा, बिकॉज इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि ये लीनियर है, तो इसमें भी डिस्पर्शन फोर्स ही होगा, राइट। HCl इज अ पोलर मॉलिक्यूल, H प्लस स्लाइटली एंड Cl नेगेटिव, तो एक पोलर को दूसरे पोलर के साथ क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। So there is dipole dipole interaction present between HCl molecules, right? फिर HCl and hydrogen, ये तो डाइपोल है, ये तो नॉन पोलर है, तो क्या होगा फिर इसमें, डाइपोल डैश, शाबाश, yes right, dipole and induced dipole interaction, induced dipole interaction, ठीक है। बताइए KCl and water,
KCl क्या है? KCl K प्लस Cl नेगेटिव, तो आयन बनाता है। क्या होगा इसका फिर? शाबाश, आयन डायपोल इंटरेक्शन। आयन आयन डायपोल इंटरेक्शन, राइट। फिर लिखें ये भी आयन डायपोल इंटरेक्शन, ion dipole interaction, because lithium is ion and water is a dipolar molecule. All right, तो यहां तक किसी को कोई शक? दिस इज अबाउट वाटर। बताइए, अगर मैं एक और क्वेश्चन बताऊं अभी आपको, मुझे बताइए हाईएस्ट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इनमें किसका है? which has highest intermolecular force? highest intermolecular force among the following, एंट्रेंस बेस्ड MCQ बता रहा हूं। H2, B is O2, C is N2 and D is HCl। बताइए सबसे हाईएस्ट किसमें का होगा? पहले वाले का क्या होगा? डिस्पर्शन फोर्स नॉन पोलर, डिस्पर्शन फोर्स वीकेस्ट, डिस्पर्शन फोर्स एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ये है, इसको कहेंगे हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सो सबसे ज्यादा किसका है? अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन HCl because it is a polar molecule, right? तो अब लास्ट में मैं इसमें इस क्वेश्चन में बताऊंगा एक चीज और। देखो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो हमने किया था केमिकल बॉन्डिंग में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही, लेकिन फर्क क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है व्हेन FON, तीन स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे HF में, तो यहाँ पर H और F इन्वॉल्व। F जहां पर इन्वॉल्व होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, या O जहां इन्वॉल्व होगा ONH वाटर, सपोज वाटर H2O वाटर, और यहाँ पर भी H एक साइड O, या अमोनिया NH3 NH3। अब पता है यहाँ पर H, जहां पर NH बॉन्ड है, जहां पर OH बॉन्ड है, या जहां पर FH बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बनाएंगे हमेशा। दैट इज आल्सो डाइपोल इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल इंटरेक्शन, याद रहे। तो अगर मैं कहूं फिर आप बताइए आज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर है नॉर्मल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, राइट। इसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एक डाइपोल दूसरा नॉन पोलर, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और लास्ट में क्या होगा? सबसे वीकेस्ट होगा डिस्पर्शन फोर्स, लंडन फोर्स, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन, राइट? This was all about the first question. Hopefully you have understood the concept. This is all for today's topic. इसको मैं भेजूंगा, रिसोर्स में मैं डाल दूंगा, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी पर, राइट?